अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा तालिबात, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हमारा दूसरा यूनिट है बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो वी विल डिस्कस इस टुडे इंशाअल्लाह। इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे आज। तो मल्टी सेलुलर बॉडी जो होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको आप कहते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल, जो प्लांट्स होते हैं, इनकी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। एक बहुत ही इनका एक इनकी बॉडी के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होती है जिसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स, between different parts of the body, between different cells of the body, between different tissues of the body, between different organs of the body, and between different organ systems of the body. And as a body as a whole, there must be a control and coordination between different organs of the body so that a body can function as a single unit. A body can function as a single unit. Just a car, just a machine, the different parts of a machine, they coordinate with each other to perform a specific function. In the same manner, different cells, different tissues, different organs, different organ systems of a body, they function in coordination with each other so that an individual remains a single unit in terms of its metabolism, in terms of its different functions. So, as you know, human beings are multicellular. They are averaging at an average there are 75 trillion cells. 75 trillion cells in a human body, and these 75 trillion cells, they must coordinate with each other in their functioning. So, what happens? There are different means by which a body can maintain control and coordination between its different parts, different organs, different tissues, different cells, etc. In human beings, there are two types of systems essential for maintaining the control and coordination. One is known as endocrine system, and another is known as nervous system. Endocrine system and nervous system. These two systems altogether maintain control and coordination within a body. Now see, we will start with this endocrine system today, its introduction. See, my dear students, there are some special cells, special organs, special tissues in our body. They are called as glands. ग्लैंड्स क्या होते हैं? जैसे आपने पहले ही पढ़ा है इन केस ऑफ डाइजेशन, मैंने आपको बताया है देयर आर salivary glands in our mouth. Our pancreas is a gland, our liver is a gland. और आपको बताया जा चुका है कि इन organs की, इन glands का एक special function होता है. They are secretory in function. They secrete some juices. They secrete some substances, and these substances, they carry a particular function, specific function, special function. So glands are cells or tissues or organs that are secretory in function. ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं, कोई ना कोई जूस से सिक्रीट करते रहते हैं, कोई ना कोई सबस्टेंस ये बनाते हैं जो सबस्टेंस कोई पर्टिकुलर फंक्शन करता है. जिसकी एग्जांपल आपको पता है, आपके माउथ में सेलिवरी ग्लैंड है, वो सिक्रीट करता है सलाइवा. तो सलाइवा जो एक जूस ये सिक्रीट करते हैं, उसका फिर आगे काम है दैट कैरीज डाइजेशन ऑफ carbohydrates to simple disaccharides, maltose and isomaltose. In the similar manner, there are many glands in your body. We will inshallah further discuss them. There are many glands in your body, and every gland performs a particular function, a specific function, an important function of your body. So gland is a organ or tissue
or cell that are secretory in function. There are some three types of glands in our body. Number one, they are called as exocrine glands. Exocrine gland. ये क्या होते हैं बेटा? आपने देखा आपका जो सेलिवरी ग्लैंड है, ये आपका सेलिवरी ग्लैंड है, इसको यहां पे पाइप लगी हुई है, एक डक्ट लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं सेलिवरी डक्ट। ये ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड, ये सेलिवरी ग्लैंड का डक्ट है। तो ये जो डक्ट है, ये यहां पे जो जूस बनता है, जो सलाइवा बनता है, वो इस डक्ट के जरिए किसी खास जगह पे पहुंचता है, जिसको आप कहते हैं टारगेट ऑर्गन, जहां पे इस ग्लैंड ने अपना काम करना है। इस सेलिवरी ग्लैंड को जो जूस इसने बनाया है, सलाइवा बनाया है, उसको अपना काम कहां करना है? माउथ में। तो सेलिवरी ग्लैंड ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ सिक्रीशन, ये ग्लैंड है, इसके पास एक डक्ट है, एक पाइप है, उस पाइप के जरिए ये अपना जो जूस है, अपनी जो सिक्रीशन है, कहां ले जाता है? इन माउथ। जो माउथ है दैट इज टारगेट ऑर्गन, वहां पे इसको काम करना है, वहां पे इसको फूड को मेटाबोलाइज ये करना है, डाइजेस्ट करना है। तो आप देखिए यहां पे डक्ट है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनके पास ये डक्ट होते हैं, और इन डक्ट्स के जरिए जो सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचती है, जहां पे वो अपना काम करती है। सो दीज ग्लैंड्स व्हिच आर हैविंग डक्ट्स, दे आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या सो वी कैन से ग्लैंड्स विद डक्ट्स, ग्लैंड्स with ducts, they are called as exocrine glands. Some glands in our body they have no ducts, they are called as ductless glands. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है स्कूल में फंक्शंस ऑफ ब्लड में मैंने आपको बताया था कि ब्लड का एक इंपॉर्टेंट काम है, प्लाज्मा जो है उसका एक इंपॉर्टेंट काम है, इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द सिक्रेटरी ऑर्गन्स, फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स। यानी कि जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप में इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके पास बेटा they are ductless, therefore they drop their secretion directly in the blood, and blood carries this secretion from the secretory organ, from the gland to the target organ. Suppose for example you have a gland in your throat, around your larynx, known as the thyroid gland. Thyroid gland directly secretes its secretions into the blood, and it is the blood which carries the hormone secreted by thyroid gland, that is thyroxine, tetraiodothyronine. हम आगे इसको जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये सीधे ब्लड में जाता है, फिर ब्लड उसको वहां पे ले जाता है जहां पे उसको काम करना है, वो उसका टारगेट है। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। इसी तरह हमारे पास कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनका एक पार्ट उसको डक्ट लगा हुआ है टू कैरी ए स्पेसिफिक फंक्शन इन ए स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, और एक पार्ट उनका ऐसा है इट सिक्रीट्स डायरेक्टली सिक्रीशन इन द ब्लड। फॉर एग्जांपल आपके पास पेनक्रियास है, पेनक्रियास हमारे पास है, आपने पढ़ा in case of digestion, pancreas secretes pancreatic juice, and it releases this pancreatic juice into duodenum, in the small sinus, through pancreatic duct. इसका मतलब pancreas is an exocrine gland, but at the same time you will discuss in this chapter that pancreas also secretes two important hormones known as insulin and glucagon, which function antagonistic, opposite to each other, and these two hormones are not secreted through a duct, but they are secreted directly into the blood. Therefore pancreas, it is both endocrine as well as exocrine in function. Such glands are called as myxocrine glands. Myxocrine glands, और इनको हम कहते हैं बेटा हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स।
हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। इसकी एग्जांपल पहली आ गई पेनक्रियास। और ये जो है, अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बाय एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। व्हाई आई मेंशन्ड एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाई नॉट एक्सोक्राइन सिस्टम, व्हाई नॉट मेसोक्राइन सिस्टम? नाउ सी द आंसर लाइज हियर। Number one, most of the glands in our body, they are endocrine. They are endocrine. For example, pituitary gland. Pituitary gland, ये एक endocrine gland है। आपके पास एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल pineal gland, thyroid gland, बहुत सारी है, बहुत सारे ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड। इसी तरह और एक एग्जांपल है सुप्रारीनल्स या एड्रेनल ग्लैंड्स। ये सारे ग्लैंड जो आपकी बॉडी में है, दीज आर मैक्सिमम एंडोक्राइन इन नेचर। दे डायरेक्टली सिक्रीट, दे डायरेक्टली पुट देयर सिक्रीशंस इनटू ब्लड। एक बात। दूसरी बात, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होती है, दे आर यूजुअली मोस्टली कंसर्न्ड विद डाइजेशन। They have least role in control and coordination of the body. They are specified to digestive functions. आप देखिए, आपके पास salivary gland है, it is an exocrine gland. Its function is almost limited to digestion. आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइनस में सक्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, उनका भी काम रिलेटेड टू डाइजेशन। आपके पास लिवर है, इट हैज गॉट हेपेटिक डक्ट, उसका काम भी ऑलमोस्ट रिलेटेड टू डाइजेशन। आपके पास बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन फंक्शन काम करते हैं, मगर उनका स्पेसिफिक फंक्शन है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, दे यूजुअली प्ले पार्ट इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह पिट्यूटरी ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपकी बॉडी के लिए, कितने काम करता है। पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, सुप्रारीनल्स, ओवरीज, टेस्टिस, दे आर ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एक तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम ग्लैंड जो है, दे आर एंडोक्राइन इन नेचर, और दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्हीं का रोल है। इसलिए इसकी जो हम हेडिंग बनाते हैं, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी आते हैं, इनकी स्टडी भी आती है, मेसोक्राइन ग्लैंड्स इनकी भी स्टडी आती है। इसलिए जनरलाइजेशन में वी से स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज एंडोक्राइनोलॉजी। An expert of these glands, a doctor of these glands who knows the disorders of these glands and the various methods by which we can treat the hormonal disorders. The such doctor is known as endocrinologist. इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में इस वक्त एक बहुत बड़े डॉक्टर थे अपने वक्त के, अब वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ही इज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ये जो ग्लैंड्स है, ये हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे तक अपनी बॉडी में जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद है। सो आई विल सम अप दिस इन दिस मैनर। यू विल सी how many endocrine glands are there, how many glands are there in our body which perform different functions. सबसे ऊपर हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है बेटा, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। उसके नीचे और एक ग्लैंड होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके नीचे और एक पाइनियल बॉडी, यहां पाइनियल ग्लैंड। इनके और भी नाम है, जब हम इनको पढ़ेंगे तो वहां में इनके अल्टरनेट नेम जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इनकी फंक्शंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इसके नीचे जब आप आएंगे तो आपके थ्रोट में ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड,
थायराइड ग्लैंड का एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब के पीछे भी, लेफ्ट लोब के पीछे भी, ऑन द dorsal side there are two pairs of glands, four glands, two pairs on the dorsal side of thyroid gland. These are called as parathyroid, parathyroid, parathyroid gland. इसके नीचे जब आप जाएंगे, आपके चेस्ट में एक ग्लैंड होता है, उसको हम कहते हैं बच्चों थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो बॉडी में एक ग्लैंड होता है लिवर। इसके नीचे जब आप जाएंगे एक और ग्लैंड होता है पेनक्रियास, पेनक्रियास। इसके नीचे जब आप और जाएंगे तो बोथ किडनीज के ऊपर, ऑन द टू किडनीज देयर इज a pair of glands, one on each kidney, known as adrenal gland, adrenal gland or suprarenals, suprarenals. Supra means upper, renal means kidney. The word renal is used for kidney. इसके नीचे जब आप जाएंगे, in females there is a pair of ovaries, a pair of ovaries. And इसके नीचे in case of males there is a pair of primary male sex organs known as testes. Ovaries and testes, being the primary male and female sex organs, also are glands. They secrete some specific hormones known as sex hormones, which are essential to maintain the sexual health of an individual. So you see, these are many glands in your body, and each gland, every gland performs a particular function. You have to deal with every gland one by one. We have to see what is the function of hypothalamus, where it is located in the body, and in the same fashion you have to discuss each and every gland in your body, its location, its functions, and the disorders that occurs as a result of hyperfunctioning or hypofunctioning, malfunctioning of a gland. So with this we will conclude this today's lecture. It was just an introduction of your control and coordination and the endocrine gland. In the next lecture we will be discussing each and every gland one by one. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.